حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پر فرعون نے کیسا ظلم کیا؟ کیا واقعی ان کے کپڑے اتارے گئے تھے؟ اکثر لوگ اس واقعہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور تاریخ کی روشنی میں اس خوفناک اور ایمان افروز قصے کی مکمل حقیقت بیان کریں گے۔ دعا ٹی وی پر ہمارے ساتھ رہیے۔ فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی میری بیوی کو بہکا لیا ہے، آج میں اس عورت کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ سب ایک ایک ہو کر اس میری بیوی آسیہ سے ہمبستری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس بدبخت فرعون کی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا گیا۔ فرعون کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 400 سال تھی۔ ان 400 سالوں میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اسے قبوس کہا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے سے پہلے فرعون محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس مشقت سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا، جہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ دونوں کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بہت چل رہا تھا۔ یہ دونوں ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ خربوزے والے نے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ، بازار میں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال بیچ لوگے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں خربوزے لے جا کر بیچ آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرعون خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دکانداروں سے خربوزے خریدنے کی بات کی، مگر دکانداروں نے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، یہی یہاں کا دستور ہے۔ ناظرین، دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ خربوزے فروخت کر کے واپس آ گیا۔ واپسی پر اس نے خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کسی ایسے کام کی تلاش میں تھا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ چنانچہ وہ بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچا اور خدمت میں عرض کی، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں غریب ہوں، بھوکا پیاسا ہوں اور کسی کام کی تلاش میں ہوں۔ مہربانی فرما کر اپنی سلطنت مصر کے کسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی خدمت دے دی جائے تاکہ میں عزت سے روزی کما سکوں۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے پوچھا، تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی نگرانی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کراؤں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا۔ میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ کیا جائے۔ فرعون کی یہ بات سن کر بادشاہ مصر نے منظوری دے دی اور اسے قبرستان کی دروغی سونپ دی۔ ناظرین، جیسے ہی فرعون کو یہ منصب ملا، وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کرنے لگا
कि अब कौन आएगा जो अपने मुर्दे को दफन करेगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि उसी साल मिस्र में एक वबा फैल गई, जिसके बायस हजारों लोग मरने लगे, और यूं फिरौन की किस्मत का पहिया एक नए मोड़ पर मुड़ गया। नाजरीन, जब फिरौन ने ये देखा तो उसने हर लाश के बदले वारिसों से एक एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया, और चंद ही दिनों में उसके खजाने में दौलत का सैलाब आ गया। फिरौन अमीर बन गया। इतना मालो दौलत इकट्ठा हो जाने पर उसने सोचा, क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तान अपनी निगरानी में ले लिए जाएं। लिहाजा उसने बादशाह वक्त को भारी रकम देकर मुल्क के तमाम कब्रिस्तान अपनी जिम्मेदारी में ले लिए। फिरौन की इस हरकत से शाही खजाने में भी पैसा पहुंचा, जिस पर बादशाह मिस्र खुश हुआ और फिरौन को बेहद प्यार और इज्जत देने लगा। इसी दौरान अल्लाह के फैसला से मिस्र का वजीर इंतकाल कर गया, और चूंकि फिरौन बादशाह के इंतहाई करीब हो चुका था, इसलिए बादशाह ने फिरौन को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इख्तिदार मिलते ही फिरौन नशे इख्तिदार में बदमस्त हो गया और अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी पास बुला लिया। फिरौन ने हामान से कहा कि वो चाहता है कि लोग इसे खुदा माने और उसकी इबादत करें। हामान ये सुनकर हैरान हुआ और मशवरा दिया कि पहले बनी इसराइल को अपने ज़ेरे इख्तियार लाओ और उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत बिठा दी जाए। हामान के कहने पर फिरौन पूछने लगा कि ये सब करने के लिए आखिर क्या किया जाए, और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे। नाजरीन, उस जमाने में मिस्र के तमाम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे, और ये मुमकिन ही नहीं लगता था कि वो अपने दीन को छोड़कर फिरौन को खुदा मान ले। इस पर फिरौन ने अपने बदबख्त दोस्त हामान से कहा कि कोई ऐसी तदबीर निकालो जिससे लोग मेरा खौफ और रौब दिल में बिठा ले और मुझे खुदा तस्लीम करे। हामान कुछ देर सोचता रहा, फिर एक चालाक मंसूबा पेश किया। उसने कहा, हम बादशाह मिस्र से अर्ज करते हैं कि मैं चाहता हूं मिस्र के तमाम लोगों की ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाए। इनके तमाम इखराजात में खुद अदा करूंगा, ताकि अवाम खुश हो जाए और सबके दिल तुम्हारी तरफ माइल हो। ये सुनकर बादशाह मिस्र राजी हो गया और 1 साल के लिए ऐलान कर दिया कि पूरे मिस्र में तमाम लोगों को रायात हासिल है। जो चाहे, जो चीज चाहे, मुफ्त हासिल कर सकता है। फिरौन ने इस 1 साल के तमाम इखराजात की रकम हामान के हाथों शाही खजाने में जमा करवा दी। फिर मिस्र भर में ऐलान हुआ, इस साल खजाना रायातों पर दस्तयाब है। तमाम इखराजात की रकम हमने बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी है, और मजीद 2 साल के लिए माफी की दरखास्त भी मंजूर हो गई है। ये सुनकर मिस्र के लोग खुशी से निहाल हो गए। वो फिरौन के गुण गाने लगे और उसकी तरक्की और इज्जत के लिए दुआएं करने लगे। अवाम फिरौन के नाम से मुतासिर हो गई। जबकि चंद ही दिनों बाद अल्लाह के हुक्म से बादशाह मिस्र अपनी मौत आप मर गया, और उसका कोई वारिस भी ना था जो तख्ते शाही संभालता। यूं तकदीर ने एक नया मोड़ लिया, और वो मौका फिरौन के हाथ आ गया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। नाजरीन, इस तरह मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक सोग मनाया गया, और चौथे रोज मिस्र के तमाम लोग दरबार शाही में हाजिर हुए और बहस करने लगे कि बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। चुनाचे उस वक्त मिस्र के लोगों ने
फिरौन की वो नेकी याद रखी कि उसने 3 बरस का खजाना अवाम पर मुआफ कर रखा था और उनके अखराजात अपने खर्चे से बादशाही खजाने में जमा करवाए थे। इसीलिए मिस्र के तमाम लोग फिरौन के इस एहसान से बहुत खुश थे। फिरौन की ये खैरखाही देखकर अवाम ने इस बदबख्त फिरौन को तख्ते बादशाही पर बिठा दिया और यूं फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। फिरौन के तख्त पर बैठते ही उसने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया और फौरन ही हामान से कहा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही कायम है, हम जो चाहें कर सकते हैं। फिरौन ने हामान से कहा कि कोई ऐसी तदबीर निकालो जिससे मिस्र के तमाम लोग मुझे अपना खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करें। हामान ने बदबख्ताना मशवरा दिया कि जितने भी उलमाए दीन तदरीस कर रहे हैं उन सब की तदरीस बंद कर दी जाए और लोगों के दरमियान दीन हक की तबलीग का सिलसिला मिटाया जाए ताकि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपने दीन से दूर किया जाए और आइंदा नस्ले दीन से लाइल्म और जाहिल पैदा हो। नाजरीन, चुनाचा हामान की ये बात सुनकर फिरौन ने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि मिस्र में कोई भी शख्स दर्स व तदरीस नहीं करेगा वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन के इस जालिमाना हुक्म के बाद पूरे मिस्र में तालीम और तदरीस का सिलसिला खत्म हो गया। लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और इल्म का नूर मांद पड़ गया। वक्त गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता तमाम लोग जाहिल और नादान बन गए, यहां तक कि वो अपने हकीकी खुदा अल्लाह ताला को भी भूल बैठे। मिस्र के लोग इस कदर जाहिल हो गए कि जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। इसी दौरान फिरौन ने एक और हुक्म जारी किया कि मिस्र के तमाम लोग अपने घरों में बुत बनाएं, उन्हें सजदा करें और उनकी पूजा किया करें। फिरौन का यह हुक्म पाते ही एक बड़ी कौम ने बुत परस्ती शुरू कर दी और देखते ही देखते ये शिर्क व गुमराही पूरे मुल्क में फैल गई। 20 बरस तक लोग बुतों की इबादत करते रहे। फिर एक दिन फिरौन ने मिस्र में एक ऐलान करवाया और लोगों से कहा, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। नाउजुबिल्लाह। नाजरीन, कुरान पाक में भी फिरौन के इन्हीं गुस्ताखाना अल्फाज का जिक्र मौजूद है। इस तरह कई सालों तक मिस्र के लोग शिर्क में मुब्तला रहे, यहां तक कि जब इनके दिलों से तौहीद का चिराग बुझ गया तो फिरौन ने एक नया जुल्म सितम करने वाला हुक्म दिया कि अब अपने घरों के तमाम बुत तोड़ दो और सिर्फ मुझे खुदा मानकर मेरी इबादत करो। चुनाचा फिरौन का ये हुक्म सुनते ही लोगों ने अपने बुत तोड़ डाले और फिरौन की पूजा शुरू कर दी। अब मिस्र की कौमें फिरौन को रब मानने लगी, मगर याद रहे कि किप्ती कौम के अलावा कोई और कौम फिरौन को खुदा नहीं मानती थी। नाजरीन, किप्ती कौम वो वाहिद कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी। बाकी तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे और सिर्फ अल्लाह ताला को अपना रब मानते थे। इसी वजह से फिरौन किप्तियों पर बहुत मेहरबान था, मगर बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ता रहता था, क्योंकि बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। फिरौन तारीख का वो बदबख्त बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया और जुल्म व तकब्बुर में ऐसी मिसाल कायम की कि जिससे तारीख के औराक भरे पड़े हैं। उसने बनी इसराइल को गुलाम बनाकर उन पर बेशुमार मजालिम ढाए, अपनी बांधियों को सताया और अपनी नेक बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़कर आखिरकार उन्हें शहीद कर डाला।
मगर नाजरीन, अल्लाह ताला ने इसके जुल्म और तकब्बुर का अंजाम ऐसा इबरतनाक बनाया कि वो अपने लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क कर दिया गया। इसकी सल्तनत नेस्तो नाबूद कर दी गई, इसके महल्लात जमीन बोस कर दिए गए और इसे कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया, ताकि दुनिया जान ले कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ बर्बादी है, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की शान है। फिरौन के महल में एक औरत थी जो इसकी बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक दिन जब वो फिरौन की बेटी के बाल बना रही थी तो अचानक उसके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। जब वो झुककर कंघी उठाने लगी तो बेइख्तियार उसकी जबान से अल्लाह का नाम निकल गया। फिरौन की बेटी फौरन चौंक गई और बोली, ये क्या तुम मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती? इस नेक बांदी ने पूरे ईमान के साथ जवाब दिया, हरगिज नहीं, मेरा खुदा वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। नाजरीन, जब लड़की ने दो टोक जवाब दिया तो वो उठकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी, आपके महल में रहने वाली ये औरत आपको खुदा नहीं मानती। बेटी की बातें सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं दरबार में जाकर इस औरत को ऐसी सजा दूंगा कि या तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब को मान लेना छोड़ देगी या फिर अपनी जान दे देगी। जब फिरौन दरबार में पहुंचा तो उसने इस औरत को बुलवाया और कहा, देखो, तुम मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहना छोड़ दो। वो कहने लगी, हरगिज नहीं। फिरौन ने उसे सख्त डराया धमकाया, मगर वो कहने लगी, अब तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसका ये दलेराना जवाब सुनकर फिरौन ने उसे अपने गुरूर का मसला बना लिया। चुनाचे हुक्म दिया गया कि उसे जमीन पर लिटा दिया जाए। फिर हुक्म हुआ कि उसके दोनों हाथों और पैरों में कीले गाड़ दी जाएं ताकि वो हरकत ना कर सके। उसी दौरान वजीर आया और बोला, उसकी एक दूध पीती छोटी बच्ची भी है, अगर उसकी बेटी को उसी के सामने कत्ल कर दो तो वो मां मजबूरी में आपकी बात मान जाएगी। इसके बाद फिरौन ने इस दूध पीती बच्ची को भी बुलाया, उसे मां के सीने पर बिठाया और कहा, मैं तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे सामने कत्ल कर दूंगा। बांधी ने फिरौन की इस बड़ी धमकी के बावजूद कहा, मेरे दिल में इत्मीनान इतना भर चुका है कि मैं अपनी आंखों से अपनी बच्ची को खून में लतपता देख सकती हूं, मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं देख सकती। नाजरीन, चुनाचा बांदी के सीने पर ही उसकी मासूम बच्ची की गर्दन काट दी गई। जब वो बच्ची ठंडी हो गई तो फिरौन कहने लगा, अब हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। वो कहने लगी, जो मर्जी चाहे कर लो, मैं अपने ईमान से पीछे नहीं हटूंगी। आखिरकार इस जालिम ने इस बहादुर औरत को भी शहीद कर दिया। उसके बाद जब फिरौन हजरत मशाता को शहीद करवाकर अपने महल पहुंचा तो अपनी बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा, आज मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। उसकी बीवी ने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान ले ली और एक बेगुनाह औरत को कत्ल कर दिया। फिरौन कहने लगा, मैंने उसे इसलिए इबरतनाक सजा दी कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू तो एक आम इंसान है। फिरौन ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह हुस्न जमाल अता फरमाया था और फिरौन ने उन्हें तमाम औरतों में से चुनकर अपनी बीवी बनाया था। वो इनसे बेहद मोहब्बत करता था। चुनाचा फिरौन ने कहा, ये तुम कैसी बातें करती हो? वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, तू झूठा है। परवरदिगार तू वही है जिसका पैगाम लेकर
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने ये बात सुनी तो सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूंगा जो मशाता के साथ किया था। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, जो चाहे कर लो, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने रब को कभी नहीं छोड़ूंगी। नाजरीन, जब फिरौन ने ये बातें सुनी तो वो फिर दरबार में आया और लोगों को जमा करके कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साजिश है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज मैं उसे या तो मार दूंगा या वो अपनी बात से हट जाएगी। चुनाचा उसने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ्तार करवाया। एक वक्त था जब वो महल में इज्जत की मालिकिन थीं। उनके इशारे पर नौकर दौड़ते फिरते और लोग एहतरामन उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा करते थे। और आज वो फिरौन के दरबार में मुल्जिम की तरह खड़ी हैं। वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में साबित कदम है। फिर फिरौन ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, तुम इतने आलीशान महल में रहती हो, इतनी नेमतों में पली हो, मैंने तुम्हें अपनी महबूबा बनाया, मगर मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। बेहतर है कि तुम अभी बाज आ जाओ और मुझे खुदा मान लो। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने ईमान कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। इस पर फिरौन ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें भी सजा देगा। सबसे पहले उसने उन्हें रुस्वा करने का हुक्म दिया और कहा कि उनका लिबास उतार दिया जाए। सोचने की बात यह है कि मर्द को भी जब लोगों के सामने बेलिबास करने की बात बताई जाए तो उसे किस कदर शर्म आती है और वो चाहता है कि जमीन उसके नीचे फट जाए। तो औरत के अंदर शर्म और हया का हाल कितना शदीद होता है। फिरौन ने हजरत आसिया का लिबास उतरवाया और वो इस शर्मनाक सूरत हाल की नजर हो गई। नाजरीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस अजाब व तहकीर का शिकार हुई। नाजरीन, एक तरफ ईमान था और दूसरी तरफ इम्तिहान, मगर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा डटी रही। फिरौन ने कहा, अच्छा, अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे ऐसा अजाब दूंगा जो किसी ने ना देखा हो। चुनांचा उसने हुक्म दिया, इसका मन मेरे महल की तरफ करके लुटा दो, ताकि आखिरी वक्त में भी इसकी निगाहें मेरे महल पर रहीं और ये सोचती रहे कि जिन नेमतों को ठुकरा कर मर रही है वो कितनी कीमती थी। चुनांचा उन्हें फिरौन के हुक्म के मुताबिक लुटा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें गाड़ दी गईं ताकि वो हरकत न कर सके। इसके बाद फिरौन ने कहा, लोगों, उसके जिस्म से खाल उतार दो। नाजरीन, वो जालिम औरत के नाजुक बदन से जिंदा खाल उतरवा रहा था, मगर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सब्र व इस्तकामत की चट्टान बनकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इन्हें अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही थी। उनके जिस्म से खाल अलग कर दी गई, मगर अल्लाह की शान के वो अब भी जिंदा थीं, अगरचे उनका जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। मगर फिरौन का दिल फिर भी ठंडा ना हुआ। उसने कहा, मिर्चें लाओ और उसके जिस्म पर छिड़क दो। जब मिर्चें उनके जख्मों पर डाली गईं, तो वो मछली की तरह तड़पने लगी। इसी अजियत के आलम में उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, फिरौन का महल मेरे सामने है और वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया, तुम अब कभी यहां वापस नहीं आओगी।
मुझे इस महल के बदले जन्नत में तेरे पास एक घर अता फरमा और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस हालत में उन्हें शहादत का दर्जा अता फरमाया और जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा का दर्जा देकर उनकी कुर्बानी को अमर कर दिया। नाज़रीन, माजी के उन पाकबाज लोगों ने ईमान बचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। जुल्म के पहाड़ सह लिए मगर ईमान का सौदा ना किया। हर बातिल ताकत से टकरा गए मगर अल्लाह को नाराज ना किया। आज के इस गए गुजरे दौर में हमसे तो सिर्फ नमाज की कुर्बानी मांगी जाती है, मगर अफसोस कि हम वो ही भी अदा नहीं करते। क्या हम इतने एहसान फरामोश हो गए हैं? पूरे वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ईमान सबसे कीमती दौलत है। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मशाता और उनकी बच्ची ने दुनिया की अज़ियतें बर्दाश्त कर लीं मगर ईमान पर समझौता नहीं किया। दुनिया फानी है और आखिरत बाकी है। फिरौन के पास ताकत, दौलत और शानो शौकत सब कुछ था मगर वो इबरत का निशान बन गया, जबकि हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त की और जन्नत में हमेशा की नेमतें हासिल की। जुल्म कभी कायम नहीं रहता। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है मगर मुआफ नहीं करता। सब्र इस्तिकामत ईमान की अलामत है। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफें सहकर भी सब्र किया और अपने रब पर यकीन रखा। हक हमेशा गालिब आता है। मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई के सामने फिरौन की ताकत मिट्टी में मिल गई। औरत की गैरत व ईमान की मिसाल हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कायम की, जो कयामत तक ईमान वाली खवातीन के लिए नमूना है। ईमान के बदले आजमाइश आती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनके ईमान की सच्चाई जाहिर हो। आखिरकार ये वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया की वक्ती राहतों के मुकाबले में ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन ही असल कामयाबी है। जो अल्लाह के लिए डट जाए वो कभी रुसवा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसे दुनिया व आखिरत में इज्जत अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें ईमान पर इस्तिकामत, अमल की तौफीक और अपनी रजा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें।